In case of expense and losses in this chapter, we debit reduction account. Income and gains in this chapter, we credit reduction account. All fictitious asset, intangible asset and losses must be written off. In case of contingent liability, if they ask us to pay, we record an entry. If it is sacrifice, we ignore. It is question number 16, students. Following balances appeared in the books of Anmol Limited as on 31st March 2009. 10,000 equity shares of 100 each, rupees 80 per share paid up. 5,000 10% preference shares of rupees 100 each fully paid. 4,000 13% debentures of 100 each. 4,000 12% debentures of 100 each. Outstanding interest on above debentures for 1 year, rupees 52,000 and 48,000 respectively. Creditors 4 lakh 20, bank overdraft 1 lakh, goodwill 2 lakh, land 3 lakh, building 7 lakh, plant machinery 4 lakh. Computer 2 lakh, stock 3 lakh, debtors 1 lakh. Company has suffered heavy losses in the past. Hence, following scheme of reconstruction was agreed by shareholders and sanctioned by the court and implemented by the company. Existing equity shareholder paid rupees 20 per share in cash to make their shares fully paid up, and then agreed to reduce them to rupees 20 each fully paid. 10% preference shares were reduced by 40 each, however face value remained unchanged. Claim of 13% debenture holders along with outstanding interest was settled by issue of 4,000 14% debentures of 100 each. Claim of 12% debenture holders along with outstanding interest was settled by issue of 4,200 12.5% debentures of 100 each. Assets were revalued as under: land 5 lakh, building 4 lakh, plant machinery 2 lakh 50, computer 1 lakh 20, stock 2 lakh 50,000. Fictitious and intangible assets were written off. You are required to see what they've asked. Prepare balance sheet before reconstruction. जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे चैप्टर में ना स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू गिव अस फर्स्ट बैलेंस शीट देन एडजस्टमेंट्स. अभी बैलेंस शीट नहीं दिया था, सो दे आर आस्किंग प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अनमोल लिमिटेड बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. Past journal entries to record about transaction. Prepare balance sheet of Anmol Limited after reconstruction. Now my advice na students, जो पहला उन्होंने पूछा ना, the first part, prepare balance sheet of Anmol Limited, instead of balance sheet ना we will prepare a statement of affairs. Why students I am making this change? ठीक है, in that year ये university का question है students. In that year they had asked balance sheet, then entries, then again balance sheet. But it is very time consuming students. I personally feel कि इतना lengthy question तो वो पूछेगा नहीं. So instead of preparing balance sheet before reconstruction, because balance sheet बनाने के लिए आपको पूरा format बनाना पड़ेगा. Then you will record entries. Then again once again balance sheet का format, तो it's quite lengthy. So what we'll do, instead of first part है ना, prepare balance sheet of company before reconstruction, we'll draw statement of affairs. Statement of affairs भी it's a form of balance sheet, but उसमें ऐसा proper format required नहीं है students. एक T form जैसा balance sheet बना लेंगे उसके लिए. So we are drawing statement of affairs. So at the top, statement of affairs. So statement of affairs is liabilities, amount, assets, amount. Once again beginning से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, वापस से क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है उन्होंने. Following balances appeared in the books of Anmol Limited as on 31st March 2009. 10,000 equity shares of 100 each, rupees 80 paid up. 10,000 equity shares of 100 each, rupees 80 paid up. $10,000 equity shares of rupees 100, rupees 80 paid up. So paid up value दिया है, तो we'll multiply with paid up value to get the answer. So 10,000 into 80, so it comes to 8 lakh. So equity share capital हो गया. Then 5,000 10% preference shares of 100 each fully paid. 5,000 10%
preference shares of rupees 100. So 5,000 multiply by 100. So it comes to 5 lakh. So preference share capital होगा. Next 4,000 13% debentures. 13% डिबेंचर. डिबेंचर का नंबर नहीं लिखेंगे तो चलेगा स्टूडेंट्स, इट्स ओके. 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100. नेक्स्ट इज 12% डिबेंचर्स. That is again 4,000 of rupees 100. So 4,000 into 100 again 4 lakh होगा. डिबेंचर इज अ लोन फॉर द कंपनी स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी में आता है. Outstanding interest on debenture. Outstanding interest on debenture. They have given two amounts. एक 52,000 दिया है. And once again you can refer the same line. Outstanding interest on debentures 48,000. ऐसा दो अमाउंट क्यों दिया है? 4 लाख का 13% they have given 52 and 4 लाख का 12% 48,000. That is the meaning. दोनों debentures पे outstanding है. Next they have given creditors. Creditors भी liability में ही आएगा. Creditors, how much they have given? 4 lakh. Next is bank overdraft. Bank overdraft भी liability है students. Bank OD 1 lakh. Next they have given us goodwill. Goodwill asset side में होगा. Goodwill given to us is 2 lakh. Next amount is land 3 lakh. Next is building. Amount is 7 lakh. Plant machinery 4 lakh. Computer 2 lakh. Daters 1 lakh. Finally stock 3 lakh. So this is nothing but a balance sheet students. उसको मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट ही है ये. अब टोटल कर लेते हैं. $8 lakh, 5 lakh, 4 plus 4 again 8 lakh, 52 and 48, 1 lakh, 5 lakh. So total of liabilities is 27 lakh. तो एसेट भी 27 ही होना चाहिए, बैलेंस शीट टाली होती है ना स्टूडेंट्स. सो 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 2 लाख एंड अगेन 4 लाख. सो एसेट का टोटल आ रहा है 22 लाख. दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस स्टूडेंट्स. यहाँ पे डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है? 22 एंड 27. दैट मीन्स 5 लाख का डिफरेंस है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉसेस. बिकॉज हम लोग इंटरनली कंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट टाली नहीं हो रही है, तो ये सब रियल एसेट दिया है, तो ये फिक्टिशियस एसेट होगा या लॉसेस होगा. सो वी कैन एज्यूम इट इज लॉसेस. सो हमने ये बैलेंस शीट बनाया बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट पार्ट टू द सोल्यूशन. ओके, जिसको हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा है. नाउ विल स्टार्ट. जैसा हम करते हैं एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे. देखो वहां लिखा भी था स्टूडेंट, बिलो डेटर्स ना, कंपनी हैज सफर्ड हेवी लॉसेस इन द पास्ट. सो दैट मीन्स बैलेंस शीट में जो बैलेंस आएगा वो हेवी लॉस है. हेवी लॉस मतलब P&L अकाउंट. ओके, hence the following scheme of reconstruction was agreed by shareholders and sanctioned by the court and implemented by company. Existing equity shareholders paid 20 per share in cash. I will not read further to make the shares fully paid. देखो 10,000 equity shares था, face value 100, but वहां पे लिखा था rupees 80 paid up. 100 face value, 80 paid up. That means 20 rupees अभी भी कॉल बाकी है. So adjustment 1 कह रहा है कि आपको कॉल करना पड़ेगा. Existing shareholders paid 20 per share in cash to make their shares fully paid up. So adjustment number A we can say. And the first part to that adjustment, we are making call. So journal entry call की क्या होती है students? Equity share call account debit to equity share capital account credit. कितने shares हैं students? 10,000.
और कॉल कितना है 20 रुपीज का. हाउ 20? 100 फेस वैल्यू, 80 पेड अप, सो 20 रुपीज इज कॉल. सो ये हो जाएगा 2 लाख. आई एम नॉट रिकॉर्डिंग नरेशन स्टूडेंट्स. अभी मैंने बहुत से क्वेश्चन में नरेशन लिखे हैं. अभी यू ट्राई टू रिकॉर्ड नरेशन ऑन योर ओन. बीन कॉल्स मेड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर. ओके, ये आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लास्ट सेम में भी होता था. मेक अ कॉल. सो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दे हैड सेड existing shareholders paid rupees 20 per share in cash to make the shares fully paid up. Same adjustment second part. Make a call हो गया तो अभी receive a call होगा. Bank account debit to equity share call account. अगर स्टूडेंट्स लास्ट समय अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है ना कॉल का, नो नीड टू वरी. नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो बाय बैक है ना, उसमें हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये एंट्री आएगी स्टूडेंट्स. सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, जितना हमने कॉल किया था सेम अमाउंट आई एम रिकॉर्डिंग हियर 2 लाख. सो बीन कॉल्स रिसीव्ड, नरेशन विल बी बीन कॉल्स रिसीव्ड. ओके, ये एडजस्टमेंट 1 में ही है हम लोग अभी. ए एडजस्टमेंट. Existing equity shareholders paid rupees 20 per share in cash to make their shares fully paid. और आगे क्या लिखा है? And then agreed to reduce them to rupees 20 each. देखो 2 रुपीज का है. Many times I've explained ये 2 का मतलब क्या होता है. 2 and by. Face value students 100 है शेयर का. Reduce to 20 मतलब स्टूडेंट्स नया फेस वैल्यू 20. सो गेन कितने का होगा? 80 रुपीज का गेन होगा स्टूडेंट्स. दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स. ओके, सो फेस वैल्यू 100 है. दे आर सेइंग reduce it to 20. 220 मतलब इसका रिवाइज वैल्यू 20 है, बट आई नीड गेन अमाउंट. सो दोनों का डिफरेंस, इज 80. सो दिस विल बी गेन फॉर अस स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हमारे लिए गेन है. अभी मैं इसको रब कर देता हूं. गेन पता चल गया 80 रुपीज का है. सो नाउ विल रिकॉर्ड द एंट्री. डन मेनी टाइम. अभी जो एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, खाली ये नया पार्ट था. बिफोर एंट्रीज वी हैड ड्रॉन अ बैलेंस शीट. अभी बाकी जो कुछ करेंगे सब नया नहीं हमारे लिए स्टूडेंट्स. ऑलमोस्ट डन. सो जनरल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ओके स्टूडेंट्स, ना अभी ध्यान से देखना. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखना है. बैलेंस शीट में 8 लाख था स्टूडेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट. बट जब आपने कॉल कर लिया तो शेयर कैपिटल क्रेडिट किया. सो क्रेडिट किया मतलब ऐड करने का लाइबिलिटी में. दिस इज लाइबिलिटी क्रेडिटेड, सो ऐड. सो अभी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख. सो हियर वी मस्ट रिकॉर्ड स्टूडेंट्स 10 लाख. वी कांट रिकॉर्ड 8 लाख. ठीक है, बैलेंस शीट में 8 लाख था. व्हाई आई रिकॉर्डेड 10 लाख? आपके रेफरेंस के लिए. 10,000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू शेयर का कितना है? 100. ठीक है, पहले 80 पेड अप था. आई मस्ट राइट मल्टीप्लाई बाय 80. बट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट एंट्री ना स्टूडेंट्स, अभी वो 80 नहीं रहा. जब आपने कॉल कर लिया, वंस यू मेक अ कॉल, सो 80 रुपीज में 20 ऐड हो गया. सो नाउ इट इज फुल एट फुल फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100. सो 10,000 इंटू 100. ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज reduced to 20. नया वैल्यू उसका 20 रुपीज है स्टूडेंट्स. सो 10,000 multiply by 20. 10,000 into 20 will be 2 lakh. So new value for equity share capital is 2 lakh. So difference is gain for the company to capital reduction account. So all these 3 entries which we have recorded, पास्ट में भी हमने रिकॉर्ड किया है स्टूडेंट्स. ओके, एंट्री नया नहीं है स्टूडेंट. दिस पार्ट वाज ओनली न्यू फॉर अस. वो भी सिंपल था. दे हैड आस्क्ड ड्रॉ बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. बट मैंने पूरा बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाया? बिकॉज वो पूरा टाइम कंज्यूमिंग स्टूडेंट्स. आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई सेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. दैट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. सो हमें ये बैलेंसिंग फिगर मिला था. दे हैड सेड कंपनी इनकर्ड हेवी लॉसेस इन द पास्ट. देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज. और एंट्रीज हमने पहले ही सब किया है स्टूडेंट्स. अभी नया कुछ नहीं है स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन. ओके, अभी आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, व्हाट दे से. बी, एडजस्टमेंट नंबर बी. 10% preference shares were reduced by 40. स्टूडेंट देखो by 40 लिखा है. एंड व्हाट दे से, however face value remains unchanged स्टूडेंट्स. ओके, जब भी फेस वैल्यू अनचेंज रहता है स्टूडेंट्स, so what entry we record? Adjustment number B. What is the name of preference share? 10%. 10% preference share capital account debit.
to capital reduction account. This is the entry we record when face value remains unchanged. उसको underline कर लेना because they had said तो. So I recorded this entry. यहाँ पे ऐसा नहीं बोला था. They had said कि equity shares are reduced to ₹20. So I recorded the full entry, equity to reduction. Here clearly they have said कि face value remains unchanged. Unchanged का है तो ये record करना पड़ेगा. Amount कैसे decide करने का स्टूडेंट? वहाँ क्या लिखा है? Preference shares were reduced by 40. By 40 बोला है ना? देखो number of shares, preference shares 5000. क्वेश्चन में दिया था और हमने बैलेंस शीट में भी लिखा है स्टूडेंट्स 5000 preference shares. By 40 means 5000 into 40. The term by means the amount which we need वो हमारे लिए gain है. So 5000 into 40. So this will be 2 lakh. Reduction credit 2 lakh. Preference share capital debit 2 lakh. They have used the term by 40. 2 लिखते हैं ना स्टूडेंट्स. So 2 मतलब होता है रिवाइज वैल्यू, जैसा ये एडजस्टमेंट में था. 2 means रिवाइज वैल्यू. बैलेंस्ड फिगर इज प्रॉफिट फॉर अस, गेन फॉर अस. अगर 2 लिखा हो तो, बट यहाँ पे बाय लिखा है. सो बाय मीन्स द गेन अमाउंट एंड आई एम रिकॉर्डिंग हियर जस्ट द गेन. रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट किया मतलब गेन, तो मुझे गेन की जरूरत है. बाय 40 बोला है तो 40 इज गेन फॉर अस. सो 5000 into 40 विल गिव अस 2 lakh. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर बी. एडजस्टमेंट सी देखो वहां क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर सी के लिए. क्लेम ऑफ claim of 13% debenture holders along with outstanding interest was settled. Settle मतलब पे करना एक तरीके से आपको, and it is adjustment number C students. So here I am recording adjustment number C. Claim of 13% debenture holders along with outstanding interest. देखो 13% debentures, अमाउंट कितना है 4 लाख और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स 52,000. 4 लाख इंटू 13% करके देख लो. 4 लाख into 13% we'll get 52,000. So this interest is related to this debenture 13%. So claim of debenture holders along with interest 4 lakh and 52 दोनों के बारे में बात कर रहा है. What we have to do, we have to settle it, we have to pay it. How we have to pay? कैश में नहीं पे करना है स्टूडेंट्स. By issue of 4,000 14% debentures of 100 each. So journal entry will be ये 13% debentures है. So 13% debentures account debit. And what else you have to pay? उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी मैंने शॉर्ट में लिखा. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ये 4 लाख है स्टूडेंट्स फ्रॉम बैलेंस शीट. दिस इज 52,000. अगर कैश में पे करते तो आई विल राइट टू बैंक अकाउंट, बट वहां पे क्लियरली बोला है बाय इश्यू ऑफ 14% डिबेंचर्स. सो टू 14% डिबेंचर्स. तो इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ राइट्स 13% से 14%, या इसको कन्वर्जन भी कह सकते हैं. डिबेंचर्स 13% से आर कन्वर्टेड इनटू 14%. ओके, सो यहाँ पे सेटल्ड बोला है बट एक्चुअली एक तरह से कन्वर्जन है या वेरिएशन है. ओके ओके 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. और नंबर भी उसने बता दिया है स्टूडेंट्स 4,000. हाँ, ये 4,000 डिबेंचर्स है ऑफ 100. सो 4,000 इंटू 100 करेंगे तो स्टूडेंट दिस विल बी 4 लाख. बट डेबिट में 4 लाख 52 टोटल है और ये टोटल सिर्फ 4 लाख आ रहा है स्टूडेंट्स हमको. ओके, सो दैट मीन्स बैलेंस जो होगा वो कंपनी के लिए गेन होगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो डिफरेंस इज गेन फॉर द कंपनी. सो अगेन ये एंट्री पहले हमने रिकॉर्ड किया. एज आई हैव सेड स्टूडेंट, अभी एंट्री हमारे लिए कुछ नया नहीं है. ओके, दिस पार्ट वाज ओनली न्यू, ये जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था. सेम वे वर्ड टू वर्ड सिमिलर एडजस्टमेंट है डी. नंबर डी भी ऐसा ही है स्टूडेंट जैसा अभी हमने किया ना, सेम है. 12% डिबेंचर अलॉन्ग विथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. देखो 12% डिबेंचर 4 लाख अलॉन्ग विथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. 4 लाख का 12% फाइंड करो 48,000. दिस इज रिकॉर्डेड हियर इन बैलेंस शीट. सो अलॉन्ग मतलब दोनों की बात कर रहा है. व्हाट वी हैव टू डू, settled by issue of, again settled by issue of some debenture. So journal entry will be 12% debentures account debit. 12% debentures account debit. Then outstanding interest on debentures account debit. This is 4 lakh.
sorry, 4 lakh. This is 48,000. If I pay cash, I must write to bank. But they have clearly said by issue of 12.5% debentures. So 12.5% debentures account credit. कितना debentures? Again student देखो वहां पे number दिया है 4,200 debentures of 100. So 4,200 into 100 will be 4,20,000. Again entry tally नहीं होगी. This is 4,48,000. This is 4,20,000. So difference will go to capital reduction account. 448 minus 420, 28,000 difference आएगा. This was adjustment number D. एडजस्टमेंट ई देखो ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन की बात कर रहा है. रीवैल्यूएशन मींस आइदर लॉस और गेन, एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन. हाउ टू डिसाइड दैट? कंपेयर द बैलेंस शीट वैल्यू विद द रिवाइज वैल्यूज गिवन इन एडजस्टमेंट. देखो लैंड यहाँ पे 3 लाख है, एडजस्टमेंट में रिवाइज वैल्यू 5 लाख, सो एप्रिसिएशन गेन. बिल्डिंग यहाँ पे 7 लाख है, एडजस्टमेंट 4 लाख, सो वैल्यू रिड्यूस हो गया, लॉस. प्लांट मशीनरी 4 लाख है, रिवाइज वैल्यू 2,50,000, अगेन लॉस. Computer 2 lakh है in balance sheet, revised value 120, again loss. Stock given to us is 3 lakh in balance sheet, in adjustment it is 250, so again loss. So सिर्फ land पे gain है, बाकी सब asset पे loss है. So what we'll do students, जिस पे gain है पहले उसको record कर लेते हैं. Land account debit. All gains in this chapter credit capital reduction to capital रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट. कितने का गेन हुआ स्टूडेंट्स? यहां पे 3 लाख है लैंड एंड रिवाइज वैल्यू में 5 लाख, सो 5 minus 3, 2 लाख इज द गेन. ओके, सेम एडजस्टमेंट. अभी बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक सब पे लॉस हुआ. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, यू कैन से सेकेंड पार्ट. अब लॉस हुआ तो डेबिट कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. अभी जिस पे लॉस हुआ उसको क्रेडिट करते जाओ. बिल्डिंग पे लॉस हुआ, व्हाट एल्स? प्लांट एंड मशीनरी पे लॉस हुआ, कंप्यूटर अगेन अ लॉस, स्टॉक लॉस. अगेन वैल्यू सबट्रैक्ट कर लेंगे, बैलेंस शीट माइनस द रिवाइज वैल्यू. बिल्डिंग 4 लाख, यहाँ पे 7 था, 7 से 4 हो गया, सो 3 लाख का लॉस ऑन बिल्डिंग. ओके, प्लांट 4 लाख, रिवाइज वैल्यू 250, सो 1,50,000 का लॉस, 4 लाख माइनस 250. कंप्यूटर यहाँ पे 2 लाख, वहां पे 1,20,000, सो 80,000 का लॉस. स्टॉक इट इज 3 लाख इन बैलेंस शीट एंड 2,50,000 ओवर देयर, सो 50,000 का लॉस. अभी ये सबका टोटल. It comes to 5,80,000 total capital reduction to all assets. Okay, last adjustment F वो नहीं भी कहता तो स्टूडेंट्स हमारे लिए कंपलसरी है. All fictitious asset, intangible assets were written off. या intangible asset है देखो एक goodwill and P&L, ये दोनों को write off करना है. Whenever we write off asset with debit reduction account, so capital reduction account debit. We are writing off goodwill, so goodwill account credit. And what else we are writing off? Profit and loss. Profit and loss is a loss na students, asset side pe. Goodwill 2 lakh and profit and loss is 5 lakh. So 5 plus 2, 7 lakh. So this was the last adjustment. So again, once again students, सिर्फ ये point important था. They had given certain details regarding assets and liabilities. उन्होंने पूछा था prepare balance sheet before reconstruction, that means before passing entries. So मैंने वो balance sheet बनाया, उसका नाम लिखा statement of affairs. Okay, and then after that I have recorded all the journal entries. Now in the end they have asked prepare balance sheet. अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स? We used to draw reduction account. अगर आपको याद है उसमें बैलेंस फाइंड करते थे. If you remember, अभी रिडक्शन अकाउंट नहीं पूछा है तो आई एम अवॉइडिंग दैट. वो प्लस माइनस करके विल फाइंड द आंसर, नो नीड टू वरी. दे हैव नॉट आस्क्ड रिडक्शन अकाउंट. उन्होंने क्या पूछा है वहां पे स्टूडेंट्स? प्रिपेयर बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन,
पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। रिडक्शन अकाउंट नहीं पूछा है ना, तो उसको अवॉइड करते हैं, नो नीड टू वरी। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको शेड्यूल्स लगते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले शेड्यूल्स बनाएंगे। शेड्यूल यहाँ पे स्पेस है तो आई एम ड्राइंग हियर स्टूडेंट्स। शेड्यूल शेयर कैपिटल हमेशा कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स, वी कांट उसको इग्नोर नहीं करने का, हमेशा शेयर कैपिटल पहले बना लेने का। नंबर 1, शेयर कैपिटल, इसमें हमेशा क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड, नॉट गिवन। उसके बाद लिखने का एक लाइन छोड़ के इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। देन स्टूडेंट्स मैंने ओल्ड बैलेंस शीट बना के रेडी रखी है यहाँ पे। शेयर कैपिटल तो बन गया। ये डिबेंचर ना स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम नॉट ड्राइंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि वो डिबेंचर ना बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए नहीं बनाते हैं। ऐसे इंटरेस्ट भी कैंसिल हो जाएगा। क्रेडिटर्स एक ही है, डोंट ड्रॉ ट्रेड पेबल्स, डोंट ड्रॉ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, कंप्यूटर, 4-5 फिक्स्ड एसेट है। सो नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग नंबर 2 फिक्स्ड एसेट बना लेंगे। नंबर 2 फिक्स्ड एसेट, दैट्स ऑल। सिर्फ 2 शेड्यूल में हमारा काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट 2 शेड्यूल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा वी स्टार्ट विद लायबिलिटी साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। वो अमाउंट पहले कैलसी पे ले लेते हैं। हाउ मच इज दैट, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। देन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, एकदम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करने का और लास्ट तक ढूंढने का स्टूडेंट्स, एकदम एंड तक जाना है। सो ये फर्स्ट एंट्री है, यहां से लेके एफ तक जाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितना डेबिट किया हमने, 2 लाख। लायबिलिटी डेबिटेड मींस माइनस, सो 8 लाख में से 2 लाख माइनस, सॉरी डेबिट नहीं, आई एम सॉरी 8 लाख लायबिलिटी, क्रेडिट है, सॉरी दिस इज कैपिटल, वी आर फाइंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 2 लाख क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिटेड मींस ऐड, सो 10 लाख हो गया। बैंक टू कॉल, इसमें शेयर कैपिटल नहीं है, कॉल है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, डेबिट किया तो माइनस, सो 10 लाख माइनस 10 लाख करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन वापस क्रेडिट किया कैपिटल, सो ऐड प्लस 2 लाख। आगे ढूंढो स्टूडेंट्स, आगे कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहां तो नहीं है। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल नो। सो फाइनल आंसर हुआ स्टूडेंट्स 2 लाख। और अभी शेयर का वैल्यू 20 है स्टूडेंट्स, यू कैन रेफर एडजस्टमेंट नंबर ए, वहां पे लिखा था ना रेड्यूस टू ₹20, नया वैल्यू 20 है। सो 2 लाख को अगर डिवाइड बाई 20 करेंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स, 10,000 शेयर्स आया। सो विल गो टू शेड्यूल नंबर 1। हमारा जो शेड्यूल नंबर 1 है ना, सॉरी यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1, 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹20, amount is 2 lakh. Okay, this was equity share capital in the balance sheet, old balance sheet. अब आ जाओ, next is preference share capital 5 lakh. अब ढूंढो preference share capital right from the first entry till the last. First में तो नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट देखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट है स्टूडेंट्स, हियर इट इज डेबिटेड। डेबिट किया मतलब माइनस करो। आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नो स्टूडेंट्स, आगे नहीं है। आंसर इज 3 लाख। व्हाट इज द रिवाइज वैल्यू स्टूडेंट्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस बाय 40 से आपने रिड्यूस कर दिया उसको, दैट मींस उसका आज का रिवाइज वैल्यू 60 है। सो डिवाइड बाय 60 करने का स्टूडेंट्स। ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। बाय लिखा है ना, तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं, नो नीड टू वरी, वापस बताता हूं मैं। पहले मैं लिख लूं 5,000, what is the name of preference shares, 5,000 10% preference shares, 5,000 10% preference shares of ₹60. I will explain how I got the 60 students. यहाँ देखो अभी एडजस्टमेंट नंबर बी में था 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस बाय, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का 100 है, रिड्यूस करने बोला है बाय 40, तो रिवाइज वैल्यू कितना आएगा 60। दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड हियर 60। तो हमें कैलसी पे आंसर 3 लाख आया था, 3 लाख को डिवाइड बाय 60 किया तो वी गॉट 5,000। ओके, इक्विटी शेयर्स के लिए इट वाज रिड्यूस टू मतलब रिवाइज वैल्यू, बाय मतलब गेन, तो हाउ टू गेट रिवाइज वैल्यू 100 - 40 60, दिस इज द रिवाइज वैल्यू फॉर अस। ओके,
नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर भी हो गया। थर्ड आइटम प्रेफरेंस शेयर के बाद 13% डिबेंचर 4 लाख। ढूंढो 13% डिबेंचर लाइबिलिटी है स्टूडेंट्स। हियर देखो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट एंट्री ऑन द नेक्स्ट पेज, 4 लाख डेबिट, सो माइनस कर दो। 4 लाख माइनस 4 लाख 0। आगे और 13% डिबेंचर नहीं है तो भूल जाओ बिकॉज फाइनल आंसर इज 0। सेम वे 12% डिबेंचर 4 लाख, ये पेज पे तो नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्टली 12% डिबेंचर डेबिट, सो डेबिट मतलब माइनस, सो 0, फॉरगेट इट। फर्दर देयर इज नो मोर 12% डिबेंचर। 12.5% है, 12% नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 52,000, लाइबिलिटी है। देखो यहाँ पे डेबिट किया है, डेबिट किया मतलब माइनस, सो 0। सेम वे 48,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वी टेक इट ऑन कैलसी, यहाँ पे डेबिट किया तो माइनस 0। क्रेडिटर्स 4 लाख, यहाँ कहीं क्रेडिटर्स है क्या स्टूडेंट? ढूंढो। देयर इज नो क्रेडिटर्स इन एंटायर दीज जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स। सो डायरेक्टली क्रेडिटर्स हम लोग कहाँ लिखेंगे? गो टू ट्रेड पेएबल्स, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स and we'll copy the same amount 4 lakh because there is nothing to add or deduct. क्रेडिटर्स को ना हमने डेबिट किया ना क्रेडिट किया तो वो सेम रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाओ 1 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले भी बहुत बार आया स्टूडेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट अ बैंक बैलेंस 1 लाख बट विद अ नेगेटिव साइन, है ना, एक्सेस विड्रॉ किया आपने बैंक से। अब ढूंढो बैंक अकाउंट। बैंक इज एन एसेट, डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस। देखो एंट्री नंबर 2 में बैंक डेबिटेड, सो ऐड, ये हो गया। यहाँ पे नहीं है बैंक, यहाँ बी में भी नहीं है। ओवर ईयर कहीं बैंक है क्या स्टूडेंट्स? बैंक, वी आर फाइंडिंग बैंक, हाँ स्टूडेंट्स, नहीं है। तो नाउ आंसर इज पॉजिटिव। हमने स्टार्ट किया था -1 लाख से, +2 लाख किया तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब इट विल गो टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेगेटिव आएगा तो शॉर्ट टर्म बोरिंग स्टूडेंट्स, नेगेटिव आया तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिखना है, और पॉजिटिव आया तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, सो बैंक इज ऑल्सो डन। तो लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया। अब एसेट साइड पे आ जाओ। गुडविल है पहला 2 लाख। देखो यहाँ पे गुडविल कहीं नहीं है, ऑन दिस साइड ऑफ द पेज देयर इज नो गुडविल। आपको डायरेक्टली यहाँ मिलेगा स्टूडेंट, समवेयर यहाँ देखो। एसेट क्रेडिट किया मतलब माइनस, सो 2 लाख माइनस 2 लाख इज 0, फॉरगेट इट। लैंड 3 लाख, डायरेक्टली आपको यहाँ मिलेगा लैंड। डेबिट 2 लाख, सो 3 लाख में 2 लाख ऐड करो, लैंड में ऐड करेंगे तो 5 लाख। सो लैंड विल अपीयर अंडर फिक्स्ड एसेट, 5 लाख, amount 5 lakh. Okay, next again after land, building कितना है ये? 7 लाख। बिल्डिंग आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स, बिल्डिंग इज ओवर हियर, यहाँ था। क्रेडिट किया आपने 3 लाख, एसेट क्रेडिट मतलब माइनस, सो इट बिकम्स 4 लाख। 7 minus 3 is 4 lakh, so we'll record here building. Amount is 7 minus 3, 4 lakh. Okay? This is a previous question, ये मत देखना। Okay. Next, बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट एसेट कौन सा स्टूडेंट्स? प्लांट। प्लांट इज 4 लाख इन बैलेंस शीट। आपको देखो प्लांट यहां मिलेगा, प्लांट समवेयर हियर। 1,50,000 क्रेडिट, सो माइनस 1,50,000, सो 250 इज द वैल्यू, सो 250 जाएगा फिक्स्ड एसेट में प्लांट। ओके, नेक्स्ट प्लांट के बाद नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर 2 लाख। यू विल फाइंड हियर कंप्यूटर स्टूडेंट्स। 80,000 क्रेडिट किया, सो माइनस, सॉरी, सो 1,20,000। अगेन कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड एसेट, यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट है कंप्यूटर, 1,20,000। ओके, नेक्स्ट क्या है कंप्यूटर के बाद? स्टॉक, नहीं सॉरी, डेटर्स 1 लाख। स्टूडेंट्स इफ यू गो थ्रू द एंटायर एंट्रीज ना, कहीं भी आपको डेटर्स नहीं मिलेगा, यू कैन चेक इट। सारी एंट्रीज देख लो, कहीं भी डेटर्स का नाम नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट कहीं भी डेटर्स का नाम नहीं है। तो डेटर्स विल डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू द बैलेंस शीट अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने होगा। व्हाट वाज द अमाउंट? इट वाज 1 लाख। डेटर्स था हमारा 1 लाख अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख। सो डेटर्स डन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना है? 5 लाख। एसेट है, एसेट देखो यहाँ पे क्रेडिट किया तो माइनस कर दो, सो 5 लाख माइनस 5 लाख इज 0।
सो हमने ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, वो रिडक्शन अकाउंट जो बनाते थे उसका बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते थे। हियर दे हैव नॉट आस्क्ड, सो आई हैव नॉट ड्रॉन। ठीक है, एग्जाम में हम टाइम बचा सकते हैं ना, इफ इट इज नॉट आस्क्ड डोंट ड्रॉ इट। तो अब क्या करना है, उसका बैलेंस कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यहां से एंट्री से कर सकते हैं। कहीं रिडक्शन है क्या, देखो क्रेडिट किया, क्योंकि ध्यान रखना कैपिटल रिडक्शन ना स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन इज अ रिजर्व। क्रेडिट किया तो ऐड करना, डेबिट किया तो माइनस। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे लिख दूंगा, नो नीड टू वरी। कैपिटल रिडक्शन यहां नहीं है, थर्ड एंट्री में स्टूडेंट्स 8 लाख। ध्यान रखना क्रेडिट किया तो ऐड करेंगे, डेबिट किया तो माइनस। देखो एंट्री नंबर बी में है क्रेडिट, 2 लाख क्रेडिट किया तो ऐड करो, सो 8 लाख हो गया, ये 2 लाख भी हो गया क्रेडिट क्रेडिट। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, देखो क्रेडिट है यहां पे, सो ऐड करो, डन। वापस क्रेडिट है 28,000, ऐड करो, 28,000 ऐड किया। वापस क्रेडिट है 2 लाख, सो ऐड करो, हो गया। यहां पे स्टूडेंट्स हमने डेबिट किया, डेबिट किया तो माइनस करो, और स्टूडेंट्स यहां पे हमने डेबिट किया तो माइनस करो। तो फाइनल आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। 0 मतलब रिडक्शन अकाउंट आपका टैली हो गया। अगर हम लोग ये अकाउंट बनाते ना तो ये टैली हो जाता। सो दैट मीन देयर इज नो बैलेंस इन रिडक्शन अकाउंट। नॉर्मली ऐसा होता था, रिडक्शन अकाउंट में स्टूडेंट्स बैलेंस आता था एंड वी यूज्ड टू रिकॉर्ड अगेंस्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, हम लोग यहां लिखते थे कैपिटल रिजर्व। बट हमने प्लस माइनस किया तो 0 आया ना, तो 0 मीन्स देयर इज नो बैलेंस इन रिडक्शन अकाउंट। तो हमने कैपिटल रिडक्शन को क्या किया स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफ क्रेडिटेड ऐड, और अगर डेबिट किया तो माइनस। ये हमने फॉलो किया, प्लस माइनस किया, आंसर 0 आया, सो फॉरगेट इट। तो रिडक्शन भी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फाइनल स्टेप में ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढते थे जिसपे क्रॉस मार्क नहीं है, जो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। देखो यहां पे है कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, कॉल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, डेबिट 2 लाख, क्रेडिट 2 लाख, कॉल डेबिट कॉल क्रेडिट, तो कैंसिल हो जाएगा ना स्टूडेंट, डेबिट क्रेडिट 2 लाख 2 लाख 0 हो जाएगा, भूल जाओ उसको। देखो ये सब कवर हो गया, यहाँ क्रॉस मार्क मैंने कर दिया है, ये सब कवर है। अभी ये पेज पे आ जाओ, 14% डिबेंचर बाकी है 4 लाख। डिबेंचर मींस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ओके। और एक और डिबेंचर है 12.5% डिबेंचर 4,20,000, दोनों लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो स्टूडेंट्स बेटर विल ड्रॉ शेड्यूल फॉर दैट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि 2 आइटम हो गया ना, तो विल उसका शेड्यूल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो विल राइट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बट स्टूडेंट्स ये ना सीक्वेंस में देखो फिक्स एसेट से पहले आता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, ओके। बेटर ऐसे अच्छा रहेगा, बिकॉज ये सीक्वेंस में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले आता है, देन कम्स फिक्स्ड एसेट। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये आएगा 14% डिबेंचर एंड 12.5% डिबेंचर। सो हियर आई विल रिकॉर्ड 14% debentures. We'll copy the same amount which we recorded in entry, 4 lakh. Then 12.5% debenture, 4,20,000. ओके, सो वो 2 आइटम भी कवर हो गया। ये बाकी था, अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, तो अभी मैंने कैंसिल कर लिया। और कुछ बाकी है, देखो ये सब कैंसिल हो गया है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज कैंसल्ड नाउ, कुछ नहीं बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना शेड्यूल क्लोज करते हैं, ये टोटल करते हैं। दिस इज 2 लाख एंड 3 लाख, सो टोटल विल बी शेयर कैपिटल का 5 लाख। फिर इसका टोटल करते हैं, इसका दिस विल बी 8,20,000, 5 + 4 9 and 3 70, 12,70,000. 12,70,000. Then we record these amounts in our balance sheet. शेयर कैपिटल नंबर 1 है, उसका टोटल हमको आया 5 लाख। 5 लाख शेयर कैपिटल इज नंबर 1 एंड अमाउंट इज 5 लाख। नंबर 2 स्टूडेंट्स ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,20,000, सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,20,000. नंबर 3 is fixed asset 12,70,000. नंबर 3 fixed asset 12,70,000. नाउ टोटल करते हैं, देयर इज नो रिजर्व्स, 5 लाख plus 0 will be 5 lakh. There is no long term provision, 820 plus 0 will be 820.
ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सो 4 लाख प्लस 0 करेंगे तो 4 लाख. Below fixed asset, we don't have investment, we don't have advances, we don't have other non-current asset. 12 lakh plus, so 12 lakh 70,000. We don't have short-term other current asset and current investment. We have just these two amounts, 1 lakh and 1 lakh is 2 lakh. स्टॉक हमने लिखा नहीं क्या स्टूडेंट्स? वही था शायद, स्टॉक भूल गए. स्टॉक था ना, ये स्टॉक दिया गया था स्टूडेंट, मैं भूल गया स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी. स्टॉक था समवेयर हियर, स्टॉक था. हाँ ये स्टॉक, ये भूल गया ना. Stock given in balance sheet was 3 lakh. Here we credited 50,000. So asset credit किया तो मतलब minus 3 lakh minus 50,000. So 2 lakh 50. अच्छा वो याद आ गया, तो balance sheet टाली नहीं होती. 2 lakh 50. I'm sorry students, मैं भूल गया था stock. So total will be 250 plus 1 lakh plus 1 lakh. So 4 lakh 50,000 इसका total. अभी total कर लेते हैं balance sheet का. 5 lakh plus 8 lakh 20 plus 4 lakh. Total is 17 lakh 20,000. Then 12 lakh 70 plus 4 lakh 50. 17 lakh 20,000. ये मैं भूल गया था स्टूडेंट स्टॉक, जल्दी में. बैलेंस शीट में था स्टॉक, हियर इट वाज देयर. Stock 3 lakh minus 50,000 because we credited. So 250 are recorded in balance. So this was the only new part. Draw a balance sheet before reconstruction. बाकी तो हमने पहले भी बहुत बार किया है स्टूडेंट्स. ओके, so this was the solution for this question. एंड उसका शेड्यूल मैंने यहाँ पे बनाया था. दिस इज द शेड्यूल. शेड्यूल नंबर 1, 2 यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड 3 देन फिक्स्ड एसेट आई हैव ड्रॉन. Number 17 students. All expense losses in this chapter debit reduction account. Income gains in this chapter credit capital reduction account. All intangible asset, fictitious asset and losses must be written off. In case of contingent liability, if it is paid, we'll record an entry. If it is sacrificed, then students will ignore it. Okay, start करते हैं. A company's position on 31st December 2001 was as follows. 20,000 equity shares of 100 each 20 lakh. 10,000 6% debentures of 100 each 10 lakh. Interest payable on above debentures 1 lakh 20. There are no liabilities and reserve. मतलब बैलेंस शीट में इसके अलावा कोई लाइबिलिटी और रिजर्व्स नहीं है. दे हैव सेड इट्स नॉट एन अजम्पशन. देयर आर नो लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स. An independent valuation of asset on the above date was considered to be worth 9,60,000 only. Hence, the following steps were taken with the approval of all concerned. Face value of shares was reduced to 40 each, rupees 20 per share paid up. Total claim of debenture holders was reduced to 5 lakh. Debenture holders agreed to accept shares of rupees 2,50,000, rupees 20 per share paid up in part satisfaction of their claim as referred to above, and for the balance they were allotted 8% debentures. Assets were brought down to their revised current value. All shareholders including under C मतलब under adjustment number C above, agreed to pay 20 per share to make the share fully paid. You are required to pass journal entries in the books of the company and prepare balance sheet of the company after above reconstruction. Students, previous question में उन्होंने clearly कहा था कि you have to draw a balance sheet before reconstruction, then record journal entries, then once again draw the balance sheet after reconstruction. अभी ये question में क्या कहा है? Pass entries, then next part was prepare balance sheet after reconstruction. स्टूडेंट्स, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मतलब एंट्रीज पास करने के बाद बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, हम लोग तो बनाते थे, हमेशा स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, बट उसके लिए भी रिक्वायर ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट के बेस पे ही तो हम लोग प्लस माइनस करते थे. ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दिया है, सो इनडायरेक्टली व्हाट डज इट मींस? अगेन आपको पहले बैलेंस शीट बनाना है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. समझ में आया? इन द प्रीवियस क्वेश्चन दे क्लियरली सेड
कि प्रिपेयर बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. यहां ऐसा बोला नहीं है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, बट दे आर आस्किंग बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मतलब आफ्टर पासिंग एंट्रीज. एंट्रीज पास करने के लिए अगर हमको बैलेंस शीट बनाना है स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट वी रिक्वायर ओल्ड बैलेंस शीट. उसी के बेस पे तो प्लस माइनस करते थे. ओल्ड बैलेंस शीट दिया नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा. तो अगेन दैट्स व्हाट आई एम डूइंग स्टूडेंट्स. अगेन वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स. बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करके लिखते हैं तो जल्दी बन जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड वी कैन से दिस इज बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. फिर एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे एंड देन वंस अगेन बैलेंस शीट बना लेंगे बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. ओके, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था. वापस बिगिनिंग से पढ़ते हैं. 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो पहला लाइबिलिटी कौन सा दिया है उन्होंने? इक्विटी शेयर्स का दिया है स्टूडेंट्स. 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एंड अमाउंट इज गिवन 20 लाख. अमाउंट भी दिया है हमको 20 लाख. हो गया. नेक्स्ट इज 10,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. 6% डिबेंचर्स, उसका भी अमाउंट पढ़ लो. इट इज गिवन 10 लाख. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेएबल ऑन अबाउट डिबेंचर्स. इंटरेस्ट पेएबल मतलब स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. अगेन इट्स अ लाइबिलिटी. इंटरेस्ट पेएबल ऑन अबाउट डिबेंचर्स कितना बोला उन्होंने? 1,20,000. स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो. There are no liabilities and reserves. Reserves अगर कोई पूछेगा तो कहो nil because adjustment ने कहा है. Liabilities मतलब ना स्टूडेंट्स, here the term liability मतलब creditors, bank overdraft, bills payable, वो भी nil है. It's not an assumption. They have said there are no liabilities and reserve. मतलब एक capital है, debenture है और एक outstanding interest. इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पर और कुछ नहीं है. दे हैव सेड देयर आर नो लाइबिलिटीज एंड रिजर्व. जनरल रिजर्व, पीएनएल कुछ भी नहीं है. लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स ने. अब स्टूडेंट्स एसेट साइड के बारे में कुछ नहीं बोला है. सो व्हाट आई विल डू, पहले बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं. लाइबिलिटी का 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1,20,000. दिस वाज 1,20,000 स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने एक जीरो कम लिखा है. दिस इज 1,20,000. So 31,20,000. So same total here I will record 31,20,000 क्योंकि बैलेंस शीट टैली होना चाहिए ना. So that means आपका जो एसेट है it is 31,20,000. ये आपका बैलेंस है. अगेन लाइबिलिटीज ये था क्वेश्चन में. दिस वाज गिवन फॉर रिजर्व्स एंड बाकी का लाइबिलिटीज के लिए दे सेड इट इज नॉट देयर. ओके, इट्स नॉट what they've said. There are no liabilities. That means it is nil. So I recorded nil. Total किया 31,20,000. Same total I recorded here. Asset का डिटेल नहीं दिया है. So that means asset totally कितना है? 31,20,000. अब इसमें फिक्स एसेट कितना है? करंट एसेट कितना है? That means plant machinery, building, vehicles, furniture, debtor, stock, bank balance. I don't know. No details are given students. तो कोई assumption मत करना. Just fixed asset आपका 31,20,000 है. Okay, so we have drawn the balance sheet. Why we have drawn? Because question में कहा था you require balance sheet after reconstruction, after passing entries. For that we require an old balance sheet. उसी के बेस पे new balance sheet बनता है. That is the reason we have drawn this. Okay. Now अभी adjustment से start करते हैं. Again अभी adjustment simple है students, पहले भी बहुत बार किया है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए. Start. What they say? Face value of shares was reduced to 40 each. 20 per share paid up. Face value of shares students, face value of equity shares की बात कर रहा है. वैसे भी प्रेफरेंस शेयर्स तो ये बैलेंस शीट में है ही नहीं. तो जनरल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. 20,000 shares of 100 each, 20 lakh. Now they say face value is reduced to 40. उसका नया वैल्यू 40 है, बट आगे क्या बोला है? 20 पर शेयर पेड अप. अब स्टूडेंट से मिस्टेक क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स तो हम लोग चेंज नहीं करते, तो नंबर यू विल राइट 20,000. आप मल्टीप्लाई बाय 40 कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज दे हैव सेड कि पेड अप वैल्यू शुड बी 20, सो आई मस्ट मल्टीप्लाई विद 20. स्टूडेंट्स अगर आपको पेड अप वैल्यू दिया है ना, तो फेस वैल्यू इग्नोर करने का. बेसिक फॉर शेयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ध्यान रखना. सो दिस कम्स टू 4 लाख. सो डिफरेंस इज गेन फॉर द कंपनी to capital reduction account. If they have given us face value as well as paid up value, तो students फिर हमारे लिए ना paid up value important होता है to record entries.
So 20 lakh, 4 lakh. So this should be 16 lakh. Difference 20 minus 4, 16 lakh. So this is the first adjustment. Okay. So this was adjustment number 8. बड़ा आसान था, पहले भी हमने किया है, कुछ नया नहीं है. खाली ध्यान रखना पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है. 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, we got this answer. Second adjustment, total claim of debenture holders was reduced. Debenture is a liability. Reduce करने बोल रहा है तो gain. देखो 6% debenture. 6% debentures account debit. टोटल क्लेम की बात किया है. टोटल क्लेम मतलब इंटरेस्ट के साथ में स्टूडेंट. सो इंटरेस्ट भी लिखो यहाँ पे. दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म टोटल क्लेम. सो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट, okay, was reduced to how much students they have said? Was reduced to rupees 5 lakh. Was reduced to 5 lakh. To 6% debentures. Okay. ये कितना है? 10 लाख. Interest is 1,20,000 and total claim is reduced to how much? 5 lakh. तो नया डिबेंचर आपका 5 लाख का होगा. So difference is gain for the company students. Again ऐसा एडजस्टमेंट हमने बहुत बार किया है. This is not the first time. This is 11,20,000. This is 5 lakh. So this should be 6,20,000. So debentures का claim reduce हो गया. Adjustment C पढ़ो. Debenture holders agreed to accept shares of rupees 2,50,000 in part satisfaction of their claim as referred to above. As referred to above मतलब as referred in adjustment B. That is the meaning. As referred to above means as referred in adjustment B. पहला 11,20,000 था. We made it how much? 5 lakh. तो अभी स्टूडेंट देखो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे. 6% debentures account debit. अभी उनका नया क्लेम कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 लाख. क्योंकि जो पुराना था दैट 11,20,000 इज कन्वर्टेड इनटू 5 लाख. इसके बदले में हमको उनको क्या देना है? क्लियरली दे हैव सेड गिव देम इक्विटी शेयर्स. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. व्हाट इज द वैल्यू? दे हैव सेड 2,50,000 स्टूडेंट्स. 2,50,000. And आगे पढ़ो. as referred to above and for the balance they were allotted 8% debenture. For the balance, they were allotted 8% debentures, students. Okay, so 8% debenture. ये 5 लाख है, 250 है, so 8% debenture will be 2,50,000. Students, अगर ऐसा चाहें तो इसका एक combined entry record कर सकते हैं. I'm not recording, खाली आप सुन लो. 6% debentures account debit 10 lakh. Interest payable account debit 1,20,000. Okay. To equity share capital 2,50,000. To 8% debenture 2,50,000. To capital reduction 6,20,000. मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये 6% डिबेंचर और ये 6% डिबेंचर को हटा दो. इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और एंट्री कंबाइन कर लो. इसको भूल गए एंड इसको भूल गए. सो 6% डिबेंचर 10 लाख. इंटरेस्ट पेएबल 1,20,000. To equity share capital 250, to 8% debenture 250, to capital reduction 6,20,000. That's what I said. तो आप कंबाइन एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, ऐसा पॉसिबल है, अलाउड भी है. चलेगा, रिकॉर्ड करेंगे तो. नंबर डी, assets were brought down to the revised value. नंबर डी देखो क्या बोल रहा है. assets were brought down to revised value. अभी स्टूडेंट्स asset का revised value पता होना चाहिए, हमें मालूम है स्टूडेंट्स. नो नीड टू वरी. देखो कहां पे दिया है. बैलेंस शीट में हमको एसेट कितना आया था? 31,20,000. इसका रिवाइज वैल्यू स्टूडेंट्स वो फर्स्ट पैरा है ना, उसके जस्ट बिलो देखो. एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द अबाउट डेट वाज कंसिडर्ड टू बी वर्थ 9,60,000. तो ये आपका रिवाइज वैल्यू है. मतलब 31,20,000 से आपको 9,60,000 करना है. तो ह्यूज लॉस ऑफ 21,60,000. इन दिस चैप्टर व्हेनेवर देयर इज लॉस विद डेबिट रिडक्शन अकाउंट. So capital reduction account debit to asset. कौन सा एसेट स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं. फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, आई डोंट नो. कितने का लॉस? 21,60,000. हाउ आई गॉट 21,60,000? बैलेंस शीट जो हमने बनाया था उसमें 31,20,000 आया था स्टूडेंट्स. 3,120. और आज का रिवाइज वैल्यू 9,60,000 फर्स्ट पैरा में, बिलो फर्स्ट पैरा वहां पे दिया है. सो 31,20,000 माइनस 9,60,000 किया तो आई गॉट दिस आंसर.
डन यहां तक. लास्ट एडजस्टमेंट नंबर ई. सी व्हाट दे से, ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग अंडर सी मतलब एडजस्टमेंट नंबर सी अबाउ agreed to pay 20 per share to make the share fully paid up. Students, again share fully paid up करना है मतलब make a call and receive a call. Again it means make a call and receive a call. So बहुत बार किया हमने make a call, receive a call. वापस कर लेते हैं, no need to worry. So when we pass an entry for make a call, क्या entry होती है? Equity share call account debit to equity share capital account credit. Amount important है. You have to make a call of ₹20. All shareholders including under adjustment C above agreed to pay 20. Clearly वहां पे 20 लिखा है. Number of shares find करना है स्टूडेंट्स, no need to worry. देखो यहाँ एक नंबर तो ऑलरेडी मुझे पता है 20,000. ये 20,000 सेम यहाँ लिखा था. देखो यहाँ भी हमने एक इक्विटी शेयर इश्यू किया था. How much was this? 2,50,000. और यहां पे ना स्टूडेंट्स ये 2,50,000 गो टू एडजस्टमेंट नंबर सी. एडजस्टमेंट सी, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ 2,50,000 ₹20 पर शेयर पेड अप. तो ये 2,50,000 को डिवाइड बाय 20 करो, आपको नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 12,500. ओके, एंड 20,000 यहां पे था, 20,000 ये सेम है, ये दोनों सेम है. सो 20,000 प्लस 12,500 शेयर्स यहां पे आया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 32,500. हाउ स्टूडेंट्स, ये 20,000 कहां से आया? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैलेंस शीट, BS बैलेंस शीट. और 12,500 कहां से आया? दिस इज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर C. सो वी गेट 32,500, 12,500 प्लस 20,000, 32,500. दे आर रेडी टू पे ₹20. सो मल्टीप्लाई बाय 20 करो, आपको आंसर आ जाएगा 6,50,000. 6,50,000. अगेन 20,000 शेयर्स मैंने वो लिखा बैलेंस शीट वाला. ये 12,500 कैसे आया? ईयर वी हैड इश्यूड, उन्होंने कहा था ना इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट सी अबाउ. तो एडजस्टमेंट नंबर सी में यहाँ पे 2,50,000 शेयर्स है. इसको आप डिवाइड बाय 20 करो तो आपको 12,500 आएगा. दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड. और आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां भी लिख सकता हूं, इट इज 12,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20. 2,50,000 को डिवाइड बाय 20 करो, यू विल गेट 12,500 शेयर्स. सेम 12,500 यहां लिखा. सो बैलेंस शीट का नंबर ऑफ शेयर्स, एडजस्टमेंट नंबर सी का नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों को ऐड किया, इट बिकम्स 32,500. फिर 32,500 को ₹20 का कॉल कर रहे हैं. सो वी गॉट 6,50,000. सो दिस वॉज द एंट्री फॉर मेकिंग अ कॉल. लास्ट फाइनली रिसीव अ कॉल. मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर देता हूं, थोड़ा स्पेस है. लास्ट एंट्री है. So when we receive a call, journal entries, bank account debit to equity share call account. Same amount लिखने का स्टूडेंट्स, जो ऊपर लिखा ना 6,50,000, same amount. So two entries we have recorded, make a call and receive a call. Again ये आपको लास्ट सेम में होता था, redemption of preference share. Important number of shares, 20,000 comes from balance sheet. 12,500 आया एडजस्टमेंट नंबर C से, बिकॉज दे हैड सेड कि एडजस्टमेंट नंबर C का भी शेयर्स इंक्लूड करना. ये 12,500 कैसे आया? 2,50,000 डिवाइड बाई 20. एडजस्टमेंट नंबर C में 20 पेड अप वैल्यू कहा था. ओके, सो वेन एवर पेड अप वैल्यू इज गिवन, फॉरगेट फेस वैल्यू. 2,50,000 डिवाइड बाई 20 इज 12,500. सो 32,500 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 20, यू गॉट 6,50,000. सो दिस वॉज द लास्ट एंट्री. अब उसके बाद उन्होंने पूछा है ड्रॉ बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट्स आप वो आप आराम से बना सकते हो. यू हैव द ओल्ड बैलेंस शीट. यहाँ पे आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंट्री भी है, सब प्लस माइनस करने के लिए है. सो यू कैन ड्रॉ न्यू बैलेंस शीट. वो अभी आपके लिए आसान हो गया. ओके, सो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया था हमने? प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियरली बोला था ड्रॉ बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. हियर हाउ आई केम टू नो कि आपको बैलेंस शीट बनाना है, बिकॉज देयर वाज बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. मतलब एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट बनानी है. सो फॉर दैट बैलेंस शीट आई रिक्वायर ओल्ड बैलेंस शीट एज अ बेस टू मेक कैलकुलेशन, एडिशन डिडक्शन करने के लिए. सो दैट इज द रीजन आई हैव ड्रॉन दिस ओल्ड बैलेंस शीट. यहां पे ऐसा नोट लिख लो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट अ नोट. We have to draw a balance sheet after reconstruction. We have to draw balance sheet after reconstruction. We have to draw balance sheet after reconstruction. For that we require balance sheet before reconstruction.
For that we require balance sheet before reconstruction. For that we require balance sheet before reconstruction. Okay, हो गया ये भी. लास्ट एडजस्टमेंट का मैंने 2 एंट्री रिकॉर्ड किया. दे हैड आस्क्ड ना इक्विटी शेयर होल्डर्स. अच्छा, कभी ये वीडियो में नहीं आया होगा तो ध्यान से स्टूडेंट्स. दैट सेड के कॉल शुड बी मेड. लास्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा था ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग अंडर एडजस्टमेंट सी अबाउ अग्रीड टू पे 20 पर शेयर टू मेक द शेयर फुल्ली पेड अप. ऑल शेयर होल्डर इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट सी अबाउ. ऑल शेयर होल्डर मतलब बैलेंस शीट का 20,000 और एडजस्टमेंट सी का 2,50,000. उसको पेड अप वैल्यू 20 से डिवाइड किया, सो 12,500 आया. 20,000 प्लस 12,500 32,500 मल्टीप्लाई बाई 20. कॉल 20 रुपीज से करना है तो वी गेट 6,50,000. ओके, सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ई. मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. ये चैप्टर में आई थिंक वी आर डूइंग द 4th टाइम ये मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. Now this is question number 18 for this chapter, students. 1-8. This is question number 18. अभी स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देता हूं इसमें पूछा क्या है. There was now स्टूडेंट्स अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन किए. We have recorded journal entry, रिडक्शन अकाउंट भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाया. Now अभी कैसे क्वेश्चन करेंगे. Either they will ask only रिडक्शन अकाउंट या रिडक्शन अकाउंट के साथ में बैलेंस शीट. दैट मीन्स नो जर्नल एंट्रीज. ये सब यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देयर वाज आइदर ओनली रिडक्शन या रिडक्शन अकाउंट के साथ में बैलेंस शीट. ओके, दैट डिपेंड्स. हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है. बट डेफिनेटली अभी एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मेनी क्वेश्चंस में अभी हमने एंट्रीज रिकॉर्ड किया है. ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस में हमने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करी है. अभी कुछ क्वेश्चन कैसे करेंगे. आइदर विल रिकॉर्ड ओनली और विल ड्रॉ ओनली रिडक्शन अकाउंट या फिर रिडक्शन अकाउंट के साथ में वी विल ड्रॉ बैलेंस शीट. फॉलोइंग इज अच्छा स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट ऑल एक्सपेंस लॉसेस इन दिस चैप्टर डेबिट रिडक्शन अकाउंट. इनकम गेन्स इन दिस चैप्टर क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट. ऑल इंटेंजिबल एसेट लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ. In case of contingent liability, if paid, record it. If sacrifice, ignore it. Following is the balance sheet of High Hops Limited as on 31st March 2014. 12% preference shares of 10 each, equity shares of 10 each, 11% debentures, creditors, provision for tax. Asset में building, machinery, stock, debtors, bank balance. Share issue expense. Asset side पे expense means it is fictitious. We have to write off. Profit and loss account debit balance. Profit and loss account on asset side means losses we have to write off. Note, preference dividend was in arrears for 3 years, so it's a contingent liability. Following scheme of reconstruction was approved. Equity shares to be reduced to rupees 2 each fully paid. 12% preference shares to be reduced to 2 each fully paid. Directors to give short-term loan of rupees 10 lakh to the company. Depreciate land and building, plant and machinery by 10%. Reduce debtors by 15%. Reduce stock to 60% of its value. Tax liability was settled. Settle मतलब pay किया for rupees 8,50,000 and reconstruction expenses amounted to 20,000. Creditors waived 20% of their claim. Waive मतलब reduce किया. 11% debentures to be converted into 13% debentures of 6 lakh in full settlement of their claim. Write off fictitious asset, debit balance in profit and loss account. See what they was. You are required to prepare capital reduction account. Entries नहीं पूछा है. Number 2, notes to accounts. हम लोग schedules बनाते थे ना स्टूडेंट्स. Notes to account मतलब schedule. Forming part of balance sheet after reconstruction as required under revised schedule 6 in respect of share capital बनाना है हमको, reserves and surplus बनाना है, cash and cash equivalent बनाना है. सिर्फ 3 schedule, 3 working note बनाने उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स. And in bracket they have clearly specified do not prepare balance sheet. Means reduction account बनाओ और 3 working note बनाने, एक share capital, एक reserves का और एक cash and cash equivalent. So that's what अभी मैंने यहाँ ऐसे ही कर रहा हूँ. पहला उन्होंने capital reduction account तो पूछा है, so ये तो करना ही है हमको. Then what they say, notes to account. So students मैं यहाँ पे ऐसा ही लिख रहा हूँ heading में, notes to account. नंबर 1 क्या पूछा है उन्होंने.
शेयर कैपिटल, ये हमको बनाना है, ठीक है, अच्छी बात है। शेयर कैपिटल में क्या क्या हेडिंग होती है? एक ऑथराइज होता है, ऑथराइज नहीं दिया, वी लीव अ लाइन एंड देन वी राइट इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। फिर नंबर 2 क्या पूछा उन्होंने? नंबर 2 यू हैव टू ड्रॉ रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पे बना देता हूं नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। और लास्ट नंबर 3 उन्होंने क्या पूछा है स्टूडेंट्स? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो दीज 3 वर्किंग नोट्स उन्होंने पूछे हैं, ओके, एंड नथिंग एल्स, रिडक्शन अकाउंट और ये 3 वर्किंग नोट, और कुछ नहीं पूछा है। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, देखो एंट्रीज तो नहीं पूछा है, बट वो रूल मत भूलना, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट रिडक्शन अकाउंट, इनकम गेन्स क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट, ये याद रखो। व्हेन दे आस्क ओनली रिडक्शन अकाउंट ना, तो ये रूल जरूर याद रखना, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, आपको जल्दी समझ में आएगा। वंस अगेन वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर 1, इक्विटी शेयर्स टू बी reduced to ₹2 ईच। बहुत बार मैंने ये बाय टू एक्सप्लेन कर दिया, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू बैलेंस शीट में 10 है स्टूडेंट्स 10। नाउ इट इज reduced to 2, बाय नहीं लिखा है, reduced to लिखा है ना, 2 लिखा है, सो दैट मीन्स ये डिफरेंस जो है कंपनी के लिए गेन होगा, है ना। नाउ वी आर नॉट रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, इतना तो समझ में आ गया, फ्रॉम 10 इट बिकम्स 2, सो इट इज गेन फॉर द कंपनी। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, वी आर कंसर्न विद रिडक्शन अकाउंट। तो आपके लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रिडक्शन अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, तो एक्सपेंस लॉस अगर होगा ना तो डेबिट साइड पे लिखना, मैंने पेंसिल से लिख दिया है। और अगर इनकम गेन्स होगा तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैंने कहा है एक्सपेंस लॉसेस डेबिट रिडक्शन अकाउंट, इनकम गेन्स क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट, तो वही रूल फॉलो कर रहे हैं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम 10 इट बिकम्स 2, तो मतलब कंपनी को गेन हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइबिलिटी है ना, इक्विटी शेयर लाइबिलिटी है, 10 से 2 हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया, तो कंपनी के लिए गेन है। ऑल गेन्स क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय क्या कम कर रहे हैं हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल, सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है, बैलेंस शीट में जाओ, देखो इक्विटी शेयर का नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। 20 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका फेस वैल्यू 10 है, सो नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। गेन कितने का हुआ? 8 रुपीज का, सो 2 लाख इंटू 8, गेन विल बी 16 लाख। हो गया स्टूडेंट्स, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग एंट्री, दे वाज ओनली रिडक्शन अकाउंट, तो हम लोग सिर्फ रिडक्शन अकाउंट पे ध्यान दे रहे हैं। बट दे वाज शेयर कैपिटल का उन्होंने शेड्यूल भी पूछा है ना, मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट यहां पे भी आएगा, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था? 20 लाख का था, उसमें से 16 लाख चला गया, रिड्यूस हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 4 लाख। या ऐसा समझो, पुराना फेस वैल्यू 10 था, अभी नया फेस वैल्यू कितना है? 2। नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज नहीं हुआ, सो हियर आई विल राइट 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2, सो 2 लाख इंटू 2 करो, 4 लाख आएगा। आइदर 20 लाख माइनस 16 लाख, यू विल गेट 4 लाख। या पुराना फेस वैल्यू 10 था, अभी नया कितना हो गया? 2, सो 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹2, यू गेट 4 लाख। ओके स्टूडेंट्स, फॉलोड व्हाट आई हैव डन। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जनरल एंट्रीज नहीं पूछा है, देयर वाज रिडक्शन अकाउंट एंड 3 वर्किंग नोट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ब्रैकेट में क्लियरली लिखा है डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, ऐसा क्लियरली मेंशन किया है। आई स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर 1, इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, इक्विटी शेयर लाइबिलिटी होती है, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹2 लिखा है ना, सो 10 से 2 हो गया, तो गेन ऑफ 8। All income gains in this chapter credit reduction account, so that's what I have done. 2 lakh number of shares, 8 rupees का gain, so I got 16 lakh. अब उन्होंने शेयर कैपिटल का शेड्यूल, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, शेयर कैपिटल का शेड्यूल भी पूछा है। सो 20 लाख जो आपको बैलेंस शीट में दिया था माइनस 16 लाख, यू कैन राइट 4 लाख। या अनदर वे, नया फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपीज है, सो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2, 4 लाख। सो वी हैव कंप्लीटेड एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट 2 सेम ऐसा ही है, 12% preference shares to be reduced to ₹2। अगेन स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू देखो बैलेंस शीट में 10 है, 10 से कितना हो गया? 2, सो इस पे भी गेन हुआ 8 का। सो अगेन विल राइट हियर बाय, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? 12%, सॉरी
12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं बैलेंस शीट में देखो, वी कैन इजिली फाइंड 12 लाख अमाउंट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 10 कर लो, इट कम्स टू 1,20,000। 8 रुपीज का गेन है, सो इंटू 8, सो इट कम्स टू 9,60,000। अब ये शेयर कैपिटल में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, नो नीड टू वरी, 1,20,000 आपके शेयर्स हैं और नया फेस वैल्यू 2 है, सो हियर आई विल राइट 1,20,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2, सो हाँ 2 है ना, यस, सो 1,20,000 इंटू 2 करो, सो यू विल गेट 2,40,000। दिस वॉज एडजस्टमेंट नंबर 2। सो इफ दे आस्क ओनली रिडक्शन अकाउंट, बड़ा आसान है, खाली सोचो, इनकम होगा ना तो क्रेडिट में लिखना और एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट में, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक। एंट्री तो पास नहीं करना है, दे हैव नॉट आस्क्ड जनरल एंट्रीज। डायरेक्टर्स टू गिव शॉर्ट टर्म लोन ऑफ ₹10 लाख टू द कंपनी। अच्छा, कंपनी को लोन मिल रहा है, सो वेदर इट्स एक्सपेंस लॉसेस के इनकम गेन्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं ऑलवेज। लोन लेना आपके लिए क्या इनकम गेन्स होता है? नेवर स्टूडेंट्स। लोन जब भी आप लेते हैं ना तो आपको वापस करना पड़ता है, यू हैव टू रीपे बैक, सो लोन इज नेवर इनकम, लोन इज नेवर गेन, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ठीक है। सो डायरेक्टर्स टू गिव शॉर्ट टर्म लोन ऑफ ₹10 लाख टू द कंपनी, तो कंपनी को लोन मिला, तो कंपनी लोन लेगी तो उसके पास कैश आएगा ना, तो कैश में आएगा स्टूडेंट्स, रिडक्शन अकाउंट में नहीं आएगा। तो मैं एक लाइन छोड़ के फिर लिखता हूं, प्लस लोन अवेल्ड। ये लोन अवेल कितना बोला उन्होंने? 10 लाख, 10 लाख। जब कभी आप ये रिवीजन करोगे आपको पता होना चाहिए कहां से आया। मैं एडजस्टमेंट नंबर लिख देता हूं, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर सी, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर सी। This is because of adjustment C. Okay, ADJ adjustment C. So लोन लेना स्टूडेंट्स इनकम गेन नहीं होता है। लोन मतलब क्या है? आज लिया है तो कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा ना, तो when you have to repay back, it is a capital receipt. It's a capital receipt. It can't be income or gain. तो अगर आपने लोन लिया है या लोन दिया है, it is not income gain or expense losses. तो रिडक्शन अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसका इफेक्ट कैश बैंक में आएगा, तो हमने कैश बैंक में लिख लिया। नंबर डी, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग और मशीनरी को डेप्रिशिएट करना मतलब एक्सपेंस हुआ ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, या ऐसा समझो कि बिल्डिंग और प्लांट की वैल्यू आप कम कर रहे हैं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज अ लॉस, ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट रिडक्शन अकाउंट। सो किसको किसको करने बोला उन्हें? लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। सो 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड 2 प्लांट एंड मशीनरी। कितना करना है हमको? 10% करना है स्टूडेंट। सो फाइन 10% कितना होता है? देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 18 लाख है, सो 18 लाख का 10% करोगे तो इट कम्स टू 1,80,000। प्लांट मशीनरी कितना है? 3 लाख, 3 लाख का 10% करोगे तो इट कम्स टू 30,000। सिंपल सा एडजस्टमेंट था। फिक्स एसेट का कोई शेड्यूल तो है नहीं, या तो शेयर कैपिटल या रिजर्व या कैश कैश इक्विवेलेंट, तो इसका एक ही इफेक्ट होगा। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ई, रेड्यूस डेटर्स। स्टूडेंट, डेटर्स भी एसेट होता है, एसेट को रेड्यूस करना मतलब लॉस। ऑल लॉसेस इन दिस चैप्टर डेबिट रिडक्शन अकाउंट। डेटर्स कितने से कम करना है? रेड्यूस डेटर्स बाय 15%। डेटर्स देखो बैलेंस शीट में कितना है स्टूडेंट्स? इट इज 20 लाख, 20 लाख इंटू 15%, इट कम्स टू 3 लाख। नो सेकेंड इफेक्ट बिकॉज डेटर्स का तो कोई शेड्यूल नहीं है। रेड्यूस स्टॉक, स्टॉक भी एसेट होता है, उसको रेड्यूस कर रहे हो तो अगेन लॉस। ऑल लॉसेस डेबिट रिडक्शन अकाउंट। कितने से रेड्यूस करना है? देव सेट रेड्यूस स्टॉक टू 60%। अगेन स्टूडेंट्स ये बाय 2 वाला, अगेन ये मैं रब कर देता हूं, अगर आपने लिख लिया होगा तो आई विल रब दिस ऑफ। अभी स्टॉक का मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगेन वो बाय 2 वाला मेनी टाइम्स यू हैव डन, बट अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स। अगेन दे यूज द टर्म रेड्यूस 2। रेड्यूस 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अगर स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया है ना, अगर 100 है तो मेक इट, रेड्यूस 2 बोला है ना, मेक इट 60। मतलब लॉस कितने का हुआ? 40 का हुआ, दैट इज द मीनिंग। सो रेड्यूस का मतलब रिवाइज वैल्यू होता है। सो लॉस कितने का है? 40 का है स्टूडेंट्स। तो स्टॉक पे लॉस हो रहा है हमको 40%, यू कैन से। ओके, रेड्यूस 260 का है ना, तो लॉस हमको 40% होगा स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? सो रेड्यूस 2, सो फ्रॉम 100 इट बिकम्स 60, सो दैट मीन देयर इज अ लॉस ऑफ 40। चलो, लॉस ऑफ 40 कैसे करेंगे देन?
स्टॉक देखो बैलेंस शीट में कितना है, बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन इज 15 लाख, तो 15 लाख 40% का लॉस, सो इट कम्स टू 15 लाख इंटू 40% इज 6 लाख. ओके. नंबर जी, टैक्स लाइबिलिटी वॉज सेटल. सेटल का मतलब पे होता है. स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में जाओ, देखो लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 8 लाख. इट इज सेटल्ड फॉर 8 लाख 50. आप पे कितना कर रहे हो, लाइबिलिटी 8 लाख का है, पे कर रहे हो 8 लाख 50. 50,000 ज्यादा पे किया तो लाइबिलिटी ज्यादा पे करना मतलब लॉस. सो हियर आई विल राइट टू बैंक अकाउंट. स्टूडेंट्स टू बैंक अकाउंट आई एम पेइंग मोर 50,000. कैसे 50,000, आपके रेफरेंस के लिए बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स 8 लाख है, दे आर आस्किंग टू सेटल दैट 8 लाख 50. तो आपको 50,000 का नुकसान ना, लाइबिलिटी ज्यादा पे कर रहे हो, बढ़ा के पे कर रहे हो. लाइबिलिटी अगर कम होता है, जैसे ये शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर लाइबिलिटी था ना, ये कम हुआ तो गेन, लाइबिलिटी बढ़ गया तो लॉस. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम liability provision for tax given in balance sheet was 8 lakh but you are paying 8 lakh 50. 50,000 ज्यादा पे किया तो लॉस. बट स्टूडेंट्स पे करना मतलब कैश जा रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट कैश में आएगा, माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स लाइबिलिटी पेड, वैसे भी लिख सकते हैं. कितना पे किया हमने, 8 लाख 50. 50,000 नहीं पे किया, 50,000 तो लॉस है. वी हैव पेड 8 लाख 50 एज पर द एडजस्टमेंट. टैक्स लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर 8 लाख 50. नेक्स्ट सेम एडजस्टमेंट में रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट रिडक्शन अकाउंट. सो अगेन वो भी पे करना है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू बैंक. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000. ये उन्होंने खुद कहा है 20. अच्छा स्टूडेंट्स, टू बैंक लिखा है तो मतलब बैंक से माइनस होगा, माइनस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 20,000. Sundry creditors waive मतलब given up sacrifice 20% of their claim. Creditor liability है, liability में waive हुआ, sacrifice हुआ, reduction हुआ मतलब gain. All gains in this chapter credit reduction account. So by creditors वहां पर उन्होंने कहा है कितना परसेंट कम करना है. They reduce their claim, waive 20% of their claim. Creditors देखो 30 लाख है बैलेंस शीट में into 20%. So it comes to 6 lakh. Next, 11% debentures to be converted into 13% debenture. Students बैलेंस शीट में जाओ, 11% डिबेंचर 10 लाख है, उसको आपने कन्वर्ट किया 13% डिबेंचर में. तो दिस इज वेरिएशन ऑफ राइट्स. 11% से 13% हो जाना ना, कोई एक्सपेंस लॉस इनकम गेन नहीं होता स्टूडेंट्स. मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरिएशन इन राइट से एक्सपेंस लॉस या इनकम गेन नहीं होता है. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से 13% हो गया, सो नो गेन नो लॉस. बट आगे पढ़ो, 11% debenture to be converted into 13% debenture of 6 lakh in full settlement of their claim. वापस बैलेंस शीट में आओ, 11% डिबेंचर 10 लाख का है ना, आपने उसको कन्वर्ट किया 13% डिबेंचर में. बट वो 13% डिबेंचर कितने का है, सिर्फ 6 लाख का है. सो 10 लाख की लाइबिलिटी थी, नई लाइबिलिटी 6 लाख की क्रिएट की, सो गेन ऑफ 4 लाख. सो बाय पुराने डिबेंचर का नाम क्या है, 11% डिबेंचर्स, 11% debentures account, 4 lakh gain. How we got this 4 lakh gain? Old debentures आपका 10 लाख का है स्टूडेंट्स, और नया डिबेंचर अभी आप जो दे रहे हो 6 लाख का है. तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट चेंज हुआ, इसके लिए गेन आया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से 13% हुआ, उसकी वजह से ये अकाउंट को अफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. एनी चेंज, एनी वेरिएशन इन राइट्स, चेंज इन रेट ऑफ डिविडेंड या चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट डजंट अफेक्ट दिस अकाउंट. ये क्यों अफेक्ट हुआ, बिकॉज आपका अमाउंट 10 लाख से 6 लाख हो गया, तो 4 लाख का गेन हो गया. लास्ट फाइनली, राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट एंड डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट ऑफ एसेट, एसेट जब भी राइट ऑफ करो तो लॉस होता है ना स्टूडेंट्स. सो हियर विल राइट फिक्टिशियस एसेट. देखो बैलेंस शीट में वो शेयर इश्यू एक्सपेंस है. एनी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. और प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने कहा है राइट ऑफ करो. शेयर इश्यू एक्सपेंस कितना है स्टूडेंट्स, वहां पे देखो 4 लाख, एंड पीएनएल कितना है 18 लाख. दैट्स ऑल. दिस वाज द लास्ट एडजस्टमेंट. अब सिर्फ आपको टोटल करना है. सो दिस वाज आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स स्टूडेंट्स.
ये 16 लाख है प्लस 9 लाख 60 प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, सो टोटल इज 3560 क्रेडिट साइड। सेम टोटल यहाँ पे लिखा 3560, 1,80,000 प्लस 30 प्लस 3 लाख 6 लाख 50 20 4 लाख 18 लाख 33 लाख 80। सो यहाँ पे बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ बैलेंस आएगा। सो ये बैलेंस हमेशा कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है स्टूडेंट्स। सो हियर आई विल राइट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 33 लाख 80 ये 35 लाख 60 है, सो डिफरेंस दोनों का। सो इट कम्स टू 1,80,000। जो बैलेंस आया ये 1,80,000। और स्टूडेंट्स कैपिटल रिजर्व हमेशा कहाँ जाता है? रिजर्व्स इन सरप्लस में। सो दिस इज व्हाट दे हैड आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो सी दे हैव नॉट आस्क्ड एंट्रीज। क्या पूछा उन्होंने? रिडक्शन अकाउंट और ये 3 वर्किंग नोट, एंड ये 3 वर्किंग नोट का टोटल करना है स्टूडेंट्स। 4 लाख प्लस 2 लाख 40 विल बी 6 लाख 40। दे हैव नॉट आस्क्ड बैलेंस शीट। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था डोंट ड्रॉ बैलेंस शीट। अच्छा, कैश बैंक बैलेंस में रुक जाओ स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट में जाओ, देखो बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस कितना दिया है? 2 लाख। सो हियर आई विल राइट ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आया? बैलेंस शीट से आया। हियर आई विल रिकॉर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट। ये कहां से लिया हमने? बैलेंस शीट से लिया। इसका भी टोटल कर लेते हैं। 2 लाख 10 लाख प्लस किया है, फिर माइनस 8 लाख 50 क्योंकि ये पे किया था, और माइनस 20,000। सो बैंक बैलेंस विल बी 3 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 3,30,000। वंस अगेन मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। अ गुड क्वेश्चन, ऐसा आप वापस रिपीट हो सकता है स्टूडेंट्स। व्हाट दे अच्छा नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। विल ड्रॉ रिडक्शन एंड विल ड्रॉ फुल फ्लेज बैलेंस शीट। रिडक्शन से बैलेंस शीट कैसे बनाना है वैसे भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नो नीड टू वरी। आज कैसा है ये क्वेश्चन? रिडक्शन अकाउंट के साथ में वी डोंट हैव टू ड्रॉ बैलेंस शीट, वी हैव टू ड्रॉ ओनली शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड दे हैव सेड डोंट ड्रॉ बैलेंस शीट। ठीक है, रिडक्शन अकाउंट तो कैसा करना है स्टूडेंट्स? ये मैंने पेंसिल से लिखा है आपके रेफरेंस के लिए। ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट दिस अकाउंट, इनकम गेन्स होगा तो क्रेडिट दिस अकाउंट। ओके, देन वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर 1। इक्विटी शेयर्स were reduced to ₹2 each fully paid। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जो ना स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू 10 था, उसका नया वैल्यू बोल रहा है 2। सो डिफरेंस कितने का है? 8। सो 8 रुपीज गेन है। सो ऑल गेन्स क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ये नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट से लिया, 20 लाख को डिवाइड बाय 10 किया तो आई गॉट 2 लाख। 2 लाख इंटू 8 गेन आया। ठीक है, फिर इसका सेकेंड इफेक्ट मैंने यहां पे लिखा। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स था, आज का नया वैल्यू इसका 2 है। सो 2 लाख शेयर्स ऑफ 2 इट कम्स टू 4 लाख। सेम वे एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹2। 10 से 2 हो गया, गेन ऑफ 8। सो गेन ऑफ 8। ऑल गेन्स इन दिस चैप्टर क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट। ये बैलेंस शीट में मिलेगा आपको। 12 लाख रुपीज था, 12 लाख को डिवाइड बाय 10 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 गेन जो हुआ 9,60,000। अगेन नया वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का 2 है, नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,000, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 each 2,40,000। Third adjustment, directors give short term loan of 10 lakh to the company। Students, लोन लेने देने से, if you take a loan or if you give a loan to someone, it is not income expense students, it's a capital receipt। लोन किसी को दिया है तो आपको वापस मिलेगा, या अगर आपने लोन लिया है तो you have to repay back। So it is not expense loss or income gain। लोन लिया है तो आपको कैश अकाउंट पे फर्क पड़ेगा ना, कैश आ रहा है आपके पास, you have taken loan। So मैंने यहाँ पे देखो कैश अकाउंट में प्लस लोन अवेल्ड, एडजस्टमेंट नंबर सी लिखा मैंने 10 लाख। डेप्रिशिएट बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट रिडक्शन टू, डेप्रिसिएशन नहीं लिखने का, एसेट का नाम लिखने का, बिल्डिंग प्लांट 10% मैंने चार्ज किया। रिड्यूस डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ तो लॉस यहाँ पे लिखा डेबिट। रिड्यूस स्टॉक 260%, 260 मतलब अगर स्टॉक 100 का है तो उसका नया वैल्यू 60 है तो लॉस कितने का है? 40 का। ओके, तो स्टॉक को 40% से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट, टैक्स लाइबिलिटी वॉज सेटल। सेटल मतलब पे करना। बैलेंस शीट में टैक्स लाइबिलिटी 8 लाख की है, आप पे कर रहे हो 8,50,000, 50,000 ज्यादा पे किया, लाइबिलिटी ज्यादा पे किया मतलब लॉस। अच्छा, पेमेंट यहाँ पे माइनस करोगे कैश में से, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड कितना पे किया? 8,50,000, 50,000 लॉस है बट आप पे कर रहे हो 8,50,000 स्टूडेंट। सो कैश में कितना पे किया वो माइनस होता है।
Reconstruction expenses amounted to 20,000. All expense debit reduction. So to bank 20,000. Expense pay कर रहे हो, so cash goes out. So मैंने यहाँ पे minus किया 20,000. Creditors waive 20% of claim. Creditors liability है, वो लोग 20% माफ कर रहे हैं. Gain for the company, so मैंने credit किया. Okay. 11% debenture converted to 13% debenture. Students ध्यान रखना, 11% converted to 13% debenture. Okay. No gain, no loss. इसकी वजह से फायदा नुकसान नहीं होगा, खाली 11 से 13 हो गया या 13 से 11. नो गेन नो लॉस. इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ राइट्स. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर बताया था. इसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ राइट्स. तो इससे हमको नो गेन नो लॉस, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. बट लेटर ऑन दे हैव सेड कि उनका नया वैल्यू 6 लाख होगा. ओल्ड वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट फॉर डिबेंचर इज 10 लाख. नया वैल्यू 6 लाख है, तो गेन ऑफ 4 लाख. गेन क्यों हुआ? क्योंकि अमाउंट चेंज हुआ. गेन इसके लिए नहीं है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ. गेन क्यों है? बिकॉज आपका अमाउंट चेंज हो गया. स्टूडेंट्स ओके. राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, शेयर इशू एक्सपेंस और पीएनएल. फिर ये अकाउंट क्लोज किया, वी गॉट दिस बैलेंस. ये बैलेंस यहां लिखा, और ये ओपनिंग बैलेंस मैंने फ्रॉम बैलेंस शीट लिया है 2 लाख. फिर ये सब क्लोज कर दिया. सो दिस वाज द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है. प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. दैट्स ऑल. थैंक यू.